We know that means, in this year the new syllabus has um, given to the students of +3 second year third semester. Um, so the syllabus has a little change that you would find out, a few changes that you find out here. It's called as a the topic is all about um, what is communication, and also why communication is essential. So and also most of the um, means, ideas pertain to the um, you can say that phonetics and voice and accent, as well as the grammar pattern and reading comprehension. Beside that, the question patterns have also changed. Um, the question patterns would be referring to 80 marks total, and this question patterns are same to all the first year, second year, third year. um, Sorry, question pattern will be same for science, arts, and commerce. And they're going to attend it in OMR sheet. Mm. So, what do you find out in this 80 marks question? So, the first 40 marks will be 1 mark. The 80 marks is divided into two parts. The first 40 marks will be given into 1 marks basis, and each question will be 1 marks. It means 40 question will be coming from, you can say that, from the communication and phonetics, voice and accent. So from all these sides, and other 40 marks where you will find out 2 marks of each questions. Um, so 20 question will be given. Um, so total 80 marks. Mm. So the exam will be held on 13th of March 2023. So what we will focus in this particular discussion, that we are going to cover all those main points, as well as means of possible questions that may come in the exam, which will be easier for you um, to attain, right? So the first thing is called as a, we will look into the main points. We will try to discuss those of the things um, as feasible as it would be for the students, right? Let's proceed that. Okay, so coming to the communicative English special course, you could find out the first question is asked about why English communication is essential and how to improve the skills. So we can get the idea that college communication is essential because of understanding, because of exchanging the ideas, and also means communication can be presented in two ways, verbal and non-verbal ways. So verbal is referring to the oral communication that you speak and the others understand, and also means you could also say written, so which we will write, and like you can talk about any agreement or any circular or any notice that you write and circulate in the offices, in the institutions, and also in the society, right? So that is called as a verbal communication. So under the verbal communication, what do we find out? We find out oral and written communication. So these communications are highly essential for the students, because means if they do not know how to communicate with their partners or peers or teachers, then that may create difficulty for them to um, means fulfill whatever their means whatever their wants, right? So that's why communication is highly essential. So communication is not restricted itself into a particular place.
It also matters when you go to abroad, or if you join in any of the means further studies or higher studies. There also the basic medium is called as a um, means you can say that English is a basic medium and English language. So you find out the different type of um, students coming out from the various places, and their mode of the communication is called as English. And that's why if someone is not having a very good fluency in the communication skills in English language, then he or she might face the problems. Mm. So how to improve the skills? We can improve the skills in a various method. Generally means we learn the language mm, by doing the reading activities, and also means enhancing the vocabulary skills, as well as practicing things many a time. So these are called as a means small ideas which you're supposed to keep in your mind. Now, introduction to voice and accent, which we will discuss in the months while we move forward. Then why do we have such different accents? So पहला चीज तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, accent का मतलब क्या होता है? What do you mean by accents? So the meaning of accent is called as the way you um, produce the language or produce the sounds, right? So and the the thing is that your accents are actually creating a kind of an impact, right? Whether the your accents indicate that means के आपका जो दूसरा पार्टनर है वो समझ रहा है कि नहीं आप क्या बोलना चाहते हैं, right? So कभी कभी क्या होता है when you speak something and in the line of the sentence you miss out some of the words, or maybe called as you produce the kind of a pronunciation which is uh, miscalculated or misunderstood, right? And for that means the communication cannot be done between the two people, right? So that is why accent is highly necessary. That where to give means stress, where to give means how to pronounce a word. Your pronunciation indicates that the spelling of the word also. So, on the basis of that, we consider that accents are highly necessary, and um, we have different accents because of means our mother tongue, right? हमारे मदर टंग की वजह से ही हमारा एक्सेंट जो है वो डिफरेंट रहता है. जैसे कि इफ यू टॉक अबाउट मीन्स इन ओडिशा यू विल फाइंड आउट variety of districts are there, and people belong to those of the places, and when they start communicating in English language, so you find out the kind of means accents they produce seems like means they belong to which of the district. जैसे कि बरमपुरिया बरमपुर people they speak the kind of accent. Means you also find out Sambalpur people how they speak the kind of accent. So variety of places have a variety of means accents because of their mother tongue influenced into it. तो चलिए हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं. सो वी फाइंड आउट बहुत सारे रीजन्स है यहाँ पे. सो आपका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रीजन for which means different accents come out. So you may find out the options called as a first language influence, right? Or called as a geographical influence, right? So, or you will find out that means socio-economic influence or educational influence or climatic influence. So ये सारे influence means क्या regions हो सकते हैं. तो out of this five कोई एक आ सकता है कि क्या ये रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंट एक्शंस आ सकते हैं. सो यू नीड टू पुट अ मार्क इनटू इट. तो ये ओएमआर शीट बेस्ड क्वेश्चंस, ओएमआर शीट बेस्ड एग्जाम्स है. तो एग्जाम है तो यहाँ पे आपको फोकस क्या करना चाहिए
मीन्स जो क्वेश्चन दिया गया है उसके बेस पे जो ऑप्शन दिया गया होगा, मीन्स उसी को आपको क्लिक करना है। तो पहला चीज यहाँ पे दिया गया है 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंस, राइट? सो व्हाट आर दे? पहला चीज तो ये है फर्स्ट लैंग्वेज इन्फ्लुएंस। जैसे कि मैंने कहा, जिसका इंग्लिश पहला लैंग्वेज नहीं है, राइट? सो उसका जो मदर टंग है, जिसकी वजह से, और नेटिव लैंग्वेज है, सो दैट ऑलवेज कम्स और इंटरफियर, राइट? सो जिसके वजह से मीन्स व्हाट हैपेंड, योर मीन्स you have a different accents that you produce. So that is what it is stated. First language influence is the first one's region, you can say. So which is filtered through the pronunciation system of our first language. So and whoever have English is not the first language. So the accent is influenced by our mother or native language, native tongue. सो सेकंड चीज यहाँ पे ये भी आता है, जैसे कि मैं अगर कहूँ कि मैं उड़िया मेरा नेटिव लैंग्वेज है और कॉलेज मेरा मदर टंग है। सो अगर उड़िया मेरा मदर टंग है और नेटिव लैंग्वेज है, तो मैं जब इंग्लिश में बात करूंगा, सो वहाँ पे बीच बीच में हम उड़िया को भी मीन्स क्या करते हैं, यूज करते हैं, है कि नहीं? जैसे कि मैं यहाँ पे इंग्लिश बोल रहा हूँ, उसमें इंग्लिश भी एक दो यूज हो रहा है। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इन्फ्लुएंस ऑफ द फर्स्ट लैंग्वेज। सो फर्स्ट लैंग्वेज इज ओडिया एंड सेकंड लैंग्वेज इज इंग्लिश। सो व्हाइल यू आर स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज, सो फर्स्ट लैंग्वेज इन्फ्लुएंस्ड यू। दूसरा चीज है ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस। सो ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि लैंग्वेज इज स्पोकन इन डिफरेंट वेज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेम कंट्री। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, तो मीन्स इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं। कुछ बच्चे अगर केरला से आते हैं, कुछ बच्चे अगर कैलकाटा से आते हैं, कुछ बच्चे अगर मीन्स बॉम्बे से आते हैं, तो उनका जो स्पीकिंग होता है, उनका जो लैंग्वेज, जो जिस हिसाब से वो बोलते हैं, राइट, वो डिफरेंस रहता है। सो दैट्स कॉल्ड एज ज्योग्राफिकल इन्फ्लुएंस, राइट? सो एंड इसको हम क्या कहते हैं, डायलेक्ट कहते हैं, ठीक है? तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि लैंग्वेज इज स्पोकन इन डिफरेंट वेज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेम कंट्री, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, और दैट इज कॉल्ड डैश। सो उस हिसाब से आपको वहां पे ये लिखना है कि उसको डायलेक्ट कहा जाता है। सो DIALECT, डायलेक्ट। सो डायलेक्ट का मतलब क्या होता है कि डायलेक्ट का मतलब होता है कि किस हिसाब से आपका साउंड्स प्रोड्यूस हो रहा है, राइट? और किस हिसाब से आपका मीन्स लैंग्वेज आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? सो और वो किसके बेस पे होता है ना, ये पॉइंट आउट करता है कि आप मीन्स कोई एक दूसरे जगह से आए हैं, और कॉल्ड एज किसी दूसरे स्टेट से आए हैं, और आपका जो मीन्स वे ऑफ स्पीकिंग है वो डिफरेंट है, ठीक है कि नहीं? So that is why we also say as people traveling around the world and begin settling in other countries, they brought about an influence of their language in the way they spoke the foreign languages as well. Over the years, this has changed the way various groups speak in a place, right? So different लोग जब एक जगह पे मीन्स एकजुट होते हैं और उनमें जो डिस्कशन होता है, तो वहां से पता चलता है कि मीन्स किस ग्रुप का किस टाइप का एक्सेंट है, और किस हिसाब से वो लैंग्वेज को एक्सप्रेस करता है, तो उसको हम डायलेक्ट कहते हैं, DIALECTS। तीसरा चीज है दैट्स कॉल्ड एज सोशियो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। ये सोशियो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्या होता है ना, सोशियो मीन्स सोसाइटी, एंड इकोनॉमिक इज रेफरिंग टू कि आपका मीन्स क्लास क्या है, राइट? जनरली क्लास और रैंक, राइट? सो जिसकी वजह से हम क्या पॉइंट आउट करते हैं, डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स क्या होगा और उसका सोशियो कल्चरल ग्रुप्स क्या होगा, राइट? किसकी वजह से, क्लासेस एंड रैंक्स के वजह से, राइट? जैसे कि अगर देखा जाए, बहुत सारे बच्चे
पब्लिक स्कूल को जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल्स को जाते हैं, राइट? उनका जो सर्कल होता है तो वो डिफरेंट रहेगा, राइट? सो पब्लिक स्कूल में मीन्स जिस हिसाब से एक बच्चे का जितने सारे दोस्त रहते हैं, तो वो उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है और वो किस लैंग्वेज में बातें करते हैं, तो दैट्स नथिंग बट कॉल्ड एज ए मीन्स उनका एक ग्रुप है, उनका एक मीन्स सोसाइटी है, और उससे वो पॉइंट आउट होता है कि मीन्स means their way of speaking is different from the kind of the students who study in a means of private school, है कि नहीं? तो अगर देखा जाए मीन्स वहाँ पे भी पता चलता है कि कोई बंदा अगर मीन्स रिच क्लास से बिलोंग करता है और कोई लड़का अगर और कोई बंदा अगर मीन्स लो क्लास से बिलोंग करता है, राइट? सो वहाँ पे क्या पॉइंट आउट होता है, मीन्स वहाँ से ये भी पॉइंट आउट होता है कि वो कितना एक्सपोजर है, राइट? कितना एक्सपोजर है और क्या-क्या वो लर्न कर रहा है, राइट? और किस हिसाब से वो उसको स्प्रेड कर रहा है, ठीक है? सो तो उस हिसाब से अगर देखा जाए द इंटरमिंगलिंग ऑफ दीज क्लासेस और रैंक्स, राइट, इन द years of modern era has also created hybrid dialects. So मीन्स यहाँ पे और एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि हाइब्रिड डायलेक्ट्स है क्या? तो आप ये भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि मीन्स के जो क्लासेस हैं, जो रैंक्स है, राइट, अगर वो मीन्स इंटरमिंगल होते हैं, राइट, सो उसको ही हाइब्रिड डायलेक्ट्स कहा जाता है, ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन हो सकता है मीन्स के द इंटरमिंगलिंग ऑफ मीन्स different groups or ranks, right, or classes in the year of modern era has also created what? Hybrid dialects. हम एक मार्क का क्वेश्चन होता है तो आप ये भी लिख सकते हो। हाइब्रिड डायलेक्ट मतलब जो उनका जो वे ऑफ टॉकिंग होता है वो थोड़ा मीन्स you can say that in a means high or called as a means excessive better, or you could say that means excessive poor also, right? तो उस हिसाब से भी हम कह सकते हैं। तो जो मीन्स चौथा चीज है दैट्स कॉल्ड एज एजुकेशनल इन्फ्लुएंस। सो एजुकेशनल इन्फ्लुएंस क्या होता है कि आप किस हिसाब से आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कहाँ से हुए है, कौन से स्कूल से है, सो जिससे ये पता चलता है कि आपका डेवलपमेंट किस हिसाब से हुआ होगा, राइट? आप किस हिसाब से आप लैंग्वेज यूज करते हो, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज एजुकेशनल इन्फ्लुएंस, ठीक है? सो जो लास्ट वन है वो क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस है। क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस क्या होता है कि क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस मीन्स climatic has influenced the human history. Why? No, because you will find out that अगर आप देखोगे तो मीन्स जो प्लेसेस है लाइक इंग्लैंड, अमेरिका, राइट, ऑस्ट्रेलिया और कॉल्ड एज न्यूजीलैंड, सो जो कोल्ड कंट्रीज हैं, राइट, जो कोल्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे मीन्स लोगों का जो नेटिव लैंग्वेज है और जो जिस हिसाब से वो लैंग्वेज को मीन्स यूज करते हैं, तो उनमें उनका मीन्स बॉडी का भी कुछ सपोर्ट होता है। लाइक इन कोल्ड कंट्रीज पीपल स्पीक विद टाइट लिप्स सो दैट द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर डज नॉट अफेक्ट देम। तो यहाँ पे क्लाइमेट का जो इफेक्ट है, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है मीन्स एक आदमी किस हिसाब से वो लैंग्वेज को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि टाइट लिप्स, राइट, पूरा धीरे बोलना या तो मीन्स जोर जोर से बोलने की कोशिश करना, राइट, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस देना। सो वो किसके वजह से? न क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस के वजह से, जिसको हम कह सकते हैं कि क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। सो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 5 रीजन्स है जिसकी वजह से क्या होता है मीन्स एक्सेंट्स डिफरेंट होते हैं, राइट? सो पहला चीज आपका मदर टंग इन्फ्लुएंस, दूसरा चीज जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस,
तीसरा चीज आपका होता है दैट्स कॉल्ड एज सोशियो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। चौथा इज कॉल्ड एज एजुकेशनल इन्फ्लुएंस एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज एक्शन ट्रेनिंग consequences। तो जिसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। हम्म, तो मीन्स अगर आप देखोगे action training, what would be the consequences or what would be the means consequence of action training? What is the importance of action training? So जैसे मैंने कहा एक्शन ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस यही है कि आपका स्टेटमेंट आप किस हिसाब से आर्टिकुलेट करते हो या तो प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। In order to understand the extent to which the business would benefit from action training, so ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, आप जहाँ पे भी जाओ, वो हायर स्टडीज हो या कोई एक बाहर की कंपनी हो, वहाँ पे आप किस हिसाब से आपके लैंग्वेज को आप यूज करते हो और किस हिसाब से आप मीन्स ड्रॉ करते हो। जैसे कि कोई बोल रहा है और आप सुन रहे हो, वहां से आप क्या समझ रहे हो वो मैटर करता है। और आप जो बोल रहे हो कि दूसरा समझ रहा है कि नहीं, तो वो आपके मीन्स एक्सेंट के ऊपर डिपेंड है और जिसके बेस पे आपका एक रिजल्ट भी आता है, ठीक है। डिस्प्ले द सिनेरियो। सो जैसे कि यहाँ पे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल हमको मिलेगा, मीन्स 4 या 5 एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि एक कस्टमर किस हिसाब से प्रॉब्लम फेस करता है जब वो एक एजेंट के साथ बात करता है, तो जहाँ पे उसको मीन्स पोर कहा जाता है, पोर नेटवर्क के बदले। सो एजेंट बोल रहा है, मीन्स एजेंट बोल रहा है पोर, बट उसका जो प्रोनाउंसिएशन है जो कि कस्टमर को सुनाई देता है बोर, राइट। इंस्टेड ऑफ हियरिंग पोर, कस्टमर हर्ड दैट बोर। सो जो मीन्स प एंड ब के साउंड के अंदर मीन्स यू नो you per and burr, that makes a kind of a problem to the means agent, right। तो जिसकी वजह से consequences क्या है, मीन्स टाइम आपका ज्यादा जाता है कि आप समझने की कोशिश करते हो, बार बार पूछते हो। तो जिसको हम कहते हैं ये एक इफेक्ट है, किसका इफेक्ट है ना, मीन्स एक्सेंट का ही इफेक्ट है, ठीक है। दूसरा चीज है दूसरा चीज है, जब आप दूसरा मीन्स एग्जाम्पल भी है जहाँ पे एजेंट ये बोल रहा है कि कैन आई हैव द नंबर ऑन द इनवॉइस। सो बट कस्टमर यहाँ पे मीन्स कस्टमर को वो जो द साउंड है, डी टी एच ई, द साउंड है, द के बदले डे सुनाई देता है। कैन आई हैव डे नंबर ऑन द इनवॉइस। सो डे जो साउंड सुनाई देता है तो वो समझ नहीं पाता है और वो बार बार पूछता रहता है, राइट। सो जिसकी वजह से एजेंट क्या प्रॉब्लम फेस करता है, एजेंट ये प्रॉब्लम फेस करता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है एंड मीन्स कस्टमर भी कंफ्यूज है यहाँ पे और एजेंट भी बार बार उसको उसी सेंटेंस को बार बार रिपीट करता है। जो थर्ड सिनेरियो है, थर्ड सिनेरियो में कहा गया है कि मिस्टर स्टीफन हैव यू मेड द पेमेंट्स। तो यहाँ पे एजेंट और कस्टमर का जो कन्वर्सेशन है, जहाँ पे मीन्स एजेंट मिस्टर स्टीफन को बोल रहे हैं कि आपने आपने ही पेमेंट किया है, लेकिन कस्टमर बोल रहा है कि पेमेंट किया है लेकिन उसने नहीं किया है, उसके डॉटर ने किया है। तो एजेंट मीन्स फिर से बोल रहा है कि आपने पेमेंट किया है कि नहीं। अरे मैटर तो यहाँ पे सिर्फ पेमेंट के ऊपर होना होना चाहिए, लेकिन एजेंट का जो स्ट्रेस है वो यू के ऊपर है एंड कस्टमर्स को यहाँ पे ये कहना चाहिए कि हाँ उसने पेमेंट किया है, वो चाहे डॉटर ने किया हो या फादर ने किया हो, लेकिन पेमेंट तो हुआ है ना। लेकिन कस्टमर यहाँ पे मीन्स इंस्टेड ऑफ सेइंग कि पेमेंट उसने किया है, तो वो बोल रहा है कि उसके बेटी ने पेमेंट किया है। तो यहाँ पे मीन्स इसका कोई यूज ही नहीं चाहिए था, ठीक है। तो जिसकी वजह से मीन्स प्रॉब्लम क्या होता है कि एजेंट का स्ट्रेस देना एक पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर, मतलब जैसे कि स्ट्रेस यहाँ पे कहाँ पे है,
ना स्ट्रेस यहाँ पे यू के ऊपर है। मिस्टर स्टीफन, हैव यू मेड द पेमेंट्स? So that makes the confusion to the customer, or that send a kind of a wrong message to the means customer, जिसकी वजह से यहाँ पे communication ठीक से नहीं हो रहा है। So customer confuse हो रहा है। तो ये यही बात point out किया जाता है कि accent का importance क्या है। तो जो चौथा चीज है, चौथा एग्जाम्पल मीन्स एजेंट और कस्टमर के बीच में है, और एजेंट जब कस्टमर को फोन कर रहे हैं तो एजेंट कस्टमर को बोल रहा है कि मीन्स किक्ड द बकेट, राइट। एजेंट जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मिस्टर बर्टन के साथ वो बात कर सकते हैं कि नहीं। कस्टमर यहाँ पे बोल रहा है कि मिस्टर बर्टन का मीन्स मिस्टर बर्टन सो हैज किक्ड द बकेट। तो यहाँ पे किक्ड द बकेट एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि मिस्टर बर्टन हैज पास्ड अवे। लेकिन एजेंट यहाँ पे समझ नहीं पा रहा है, और वो फिर से बोल रहा है कि व्हेन कैन आई कॉल बैक टू टॉक विथ हिम। सो एजेंट का ये स्टेटमेंट पॉइंट आउट करता है कि एजेंट ने उस इडियम को ठीक से समझा नहीं, राइट। और इसीलिए उसने पूछा कि कैन आई कॉल बैक टू टॉक टॉक विथ हिम। एंड जिसकी वजह से क्या हुआ, मीन्स इट मेक्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजेंट्स लैंग्वेज प्रॉब्लम। ठीक है। तो इसी की वजह से मीन्स एक्सेंट इज हाईली नेसेसरी। एक्सेंट बहुत जरूरी है। मीन्स कोई एक चीज को समझने के लिए, कोई एक चीज की वजह से मीन्स आपके मीन्स आपका प्रॉब्लम लेंदी ना हो, टाइम ना बढ़े, एंड आप कोई एक चीज को मीन्स बहुत कम समय में समझ भी पाओ, और उसी के हिसाब से आप रिप्लाई भी करो। ठीक है। सो जिसकी वजह से एक्सेंट इज हाईली नेसेसरी। नाउ अगर हम देखें next one, the next one is called as a voice and accent in the enterprise industry. So voice and accent का क्या रोल है enterprise industry में? So अगर देखा जाए, वॉइस एंड एक्सेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है मीन्स किसके ऊपर, मीन्स लैंग्वेज के ऊपर। सो वो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, वेदर आप उड़िया के ऊपर डिस्कस कर रहे हो या इंग्लिश के ऊपर डिस्कस कर रहे हो, या आप कोई भी तेलुगु या बंगाली, सो कुछ कुछ भी लैंग्वेज हो, राइट। सो उसका कुछ एडवांटेजेस होता है, जैसे कि आपका अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, आप किस हिसाब से स्टेटमेंट को समझ रहे हो। तो पहला चीज तो आपका होता है एडवांटेजेस में कॉम्प्रहेंशन स्किल्स। दूसरा क्या होता है कि वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन। सो आप किस टाइप का वोकैबुलरी यूज करते हो, आपका प्रोनाउंसिएशन कितना क्लियर है, राइट। तीसरा चीज है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन फेलियर, राइट। अगर आपका मीन्स एक्सेंट एंड मीन्स वॉइस एंड एक्सेंट अगर उतना अच्छा नहीं है, तो आपका इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन फेलियर हो सकता है। और अगर अच्छा है तो आपका इंटर कम्युनिकेशन कल्चर जो है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कल्चर जो है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है। सो decreases the chances of intercultural communication. So what we can find out here, mm, we can find out कि वॉइस एंड एक्सेंट का एडवांटेजेस क्या होता है, comprehension skills, then after vocabulary and pronunciation skills, third one is called as a intercultural communication failure, and decreasing the intercultural communication failure, and fifth one is called as a आप कोई भी लैंग्वेज को, और जो लैंग्वेज में आप मीन्स वॉइस एंड एक्सेंट आपका उतना अच्छा है, तो आप उसको मीन्स बहुत अच्छे से समझ भी पाओगे। ठीक है। सो इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन फेलियर्स का, और डिक्रीजिंग द इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन फेलियर का मतलब क्या होता है कि मीन्स variety of culture, right, or called as a variety of means places where people belong to, and when you talk with them, so you can understand the one of the particular language which through you communicate with the variety of people। ठीक है। तो ये वॉइस एंड एक्सेंट जो कि बहुत हेल्पफुल होता है
मीन्स कोई भी इंडस्ट्री आप ले लीजिए. So next one is called as a globally comprehensible accent. So जब आप globally comprehensible accent कहा जाता है, तो इंग्लिश एक globally comprehensible accent है. So comprehensible का मतलब होता है understanding, right? जिसको सारे दुनिया में समझा जाता है. So क्योंकि वही एक मेथड है जिसके थ्रू आप मीन्स कोई भी मीन्स किसी भी आदमी के साथ मीन्स वो चाहे कोई भी कंट्री से बिलोंग किया हो या तो कोई भी स्टेट से बिलोंग करता हो, तो मीन्स आपका उसके साथ जो कम्युनिकेशन होगा वो एक ही मीन्स पर्टिकुलर लैंग्वेज होगा, दैट्स कॉल्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको मीन्स अगर आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, देन मीन्स वो उसको अच्छे से समझ पाएगा और आप सिर्फ प्रेज़ेंट नहीं करोगे, आप खुद भी समझोगे, ठीक है? द नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड एज़ अम, किस हिसाब से हम और क्या-क्या पाथ फॉलो करेंगे? सो ओ व्हाट इज़ द अप्रोच और व्हाट आर द अप्रोचेस टू इम्प्रूव आवर एक्सेंट स्किल्स? तो कैसे हम अपना जो एक्सेंट स्किल्स डेवलप कर सकते हैं? सो पहला चीज़ तो है अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन स्टाइल. तो हमारा जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, राइट? सो और एक आदमी का जो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन स्टाइल है, तो उसके ऊपर उसका मीन्स नॉलेज होनी चाहिए, सो अवेयरनेस होना चाहिए. दूसरा चीज़ मीन्स अवेयरनेस रहेगा, तभी जाके वो क्या कर पाएगा ना, वो इम्प्रूवमेंट कर पाएगा अपने मीन्स पर्टिकुलर कम्युनिकेशंस को. अगर देखा जाए मीन्स somebody who cannot speak the language called English, तो उसके ऊपर उसका फोकस होना चाहिए कि कैसे मैं उस लैंग्वेज को डेवलप करूं सो दैट नेक्स्ट टाइम में उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं. सो अवेयरनेस होना चाहिए. उसके बाद आइडेंटिफाई भी कर पाना चाहिए कि मैं इस लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहा हूँ, तो इसको मैं क्या करूँ, इम्प्रूव करना चाहता हूँ. सो उसके बाद आपका आएगा डेवलप ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फोनेटिक सिस्टम. अगर वो अपने मीन्स इम्प्रूवमेंट एरियाज को फोकस करेगा, राइट? और जो एरियाज को वो आइडेंटिफाई कर पाएगा और उसके ऊपर वो काम करने लगेगा और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा, राइट? उसके बाद वो फॉलो करेगा डेवलप ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फोनेटिक सिस्टम. फोनेटिक सिस्टम का मतलब होता है साउंड सिस्टम, राइट? आप किस हिसाब से बोलते हो और मीन्स आपका क्लैरिटी क्या है, आर्टिकुलेशन क्या है, राइट? सो और आपका एक्सेंट क्या है, वो सही है या नहीं है, राइट? सो उसको वो डेवलप करने की कोशिश करेगा. देन चौथा चीज़ है अंडरस्टैंड द सिलेबिक स्ट्रेस. तो वो ये भी देखेगा सिर्फ मीन्स पहला चीज़ आपने क्या पॉइंट आउट किया यहाँ पे. सो द फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल अवेयरनेस. दूसरा चीज़ है आइडेंटिफाई. सो आपने अवेयरनेस किया. दूसरा आइडेंटिफाई किया आपने प्रॉब्लम के ऊपर और उसको डेवलप करने की कोशिश की, राइट? डेवलप और an understanding of the phonetic system. देन चौथा है यहाँ पे कि आप समझोगे कि सिलेबिक स्ट्रेस, जो चीज बोला जा रहा है वहां पे कहाँ पे मुझे स्ट्रेस देना चाहिए और कहाँ पे मुझे स्ट्रेस नहीं देना चाहिए. स्ट्रेस कहाँ पे दोगे ना, जहाँ पे साउंड होता है, जैसे कि मैगजीन, राइट? सो यू वुड फाइंड आउट दैट मैगजीन, right? So somebody who is quickly speaking the word magazine, so or somebody who is saying that um, philosophy, right? So look into the kind of stress, right? कहाँ पे स्ट्रेस दिया जाता है. सो फिलोसॉफी, राइट? सो फिर यहाँ पे लव के ऊपर स्ट्रेस होता है फिलोसॉफी, और सर के ऊपर स्ट्रेस होता है. तो मीन्स उसी के बेस पे वो उसको कैप्चर करने की कोशिश करेगा, राइट? सो syllabic stress is called as a stressing on the means sound where it is stressed. Correct, improve and practice. So आप भी उसी हिसाब से
कोशिश कीजिएगा कि डेवलप करने के लिए और करेक्ट करने के लिए, एंड उसको बार बार प्रैक्टिस भी करना चाहिए. देन द सिक्स्थ वन इज कॉल्ड एज इवैल्यूएट इम्प्रूवमेंट. राइट. सो आपका क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर भी आप क्या पॉइंट आउट करोगे. मीन्स आप इवैल्यूएट करोगे, मीन्स एनालाइज करोगे कि मेरा कितना डेवलपमेंट हुआ है, मैं पहले कैसे बोलता था और अभी कैसे बोल रहा हूँ. सो ये जो 6 तरीके हैं, so these 6 means paths are actually helping us to develop our actions. ठीक है. Now next is called as a तो देखिए, सो यहाँ पे वही चीज दिया गया है. सो आपका क्वेश्चन भी एक मार्क का ये भी आ सकता है कि student must get feedback from the faculty, other student, and from oneself on their communication style. This would include the feedback on, so you can say articulation, pronunciation, syllable word stress, sentence stress, intonation. अगर ये सारे हैं क्या, ये किसके अंडर में आते हैं ना. अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन स्टाइल. तो मीन्स इंडिविजुअल कम्युनिकेशन स्टाइल अगर कहा जाता है, तो किस हिसाब से आप अवेयर करोगे कि आपका आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन मतलब कोई भी वर्ड को अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो आपका किस हिसाब से आप उसको आर्टिकुलेट करते हो या तो प्रेजेंट करते हो. राइट. और किस हिसाब से आप बोलते हो, उसको आर्टिकुलेशन कहा जाता है. प्रोनाउंसिएशन, सो प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड एज कोई एक वर्ड को आप किस हिसाब से प्रोनाउंसिएशन करते हो या तो प्रोड्यूस करते हो उसके साउंड को. सो लेट्स से दैट अगर मैं मीन्स कोई भी वर्ड को प्रोड्यूस करता हूँ, जैसे कि स्टॉप, स्टॉप. So I use articulate. How do I articulate? Stop. So मेरा टोन किस हिसाब से मीन्स अपर टीथ को टच कर रहा है, और मीन्स किस हिसाब से मेरा बाइलैबियल. राइट. सो दोनों अपर मीन्स अपर लिप एंड लोअर लिप किस हिसाब से टच करता है, तो उसको आर्टिकुलेशन कहा जाता है. तो आप किस हिसाब से कोई एक वर्ड को बोलते हो, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज आर्टिकुलेशन. प्रोनाउंसिएशन, आप वही वर्ड को किस हिसाब से मीन्स प्रॉपरली आप मीन्स साउंड को प्रोड्यूस करते हो या गलत तरीके से प्रोड्यूस करते हो. जैसे कि मीन्स आप प्रोड्यूस करते हो पोर, then somebody, if you heard bore, right, so there is a difference of sound, that's called as, it starts with a p, right, but somebody understands it b, right. So per and b, right, pour and bore. So आपका प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, लॉन्ग साउंड होना चाहिए या शॉर्ट साउंड होना चाहिए, तो उसी को प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है. आर्टिकुलेशन आप किस हिसाब से बोलते हो. देन सिलेबल वर्ड सेंटेंस स्ट्रेस. सो सिलेबल का मतलब होता है साउंड मीन्स, और मीन्स वर्ड. सेंटेंस स्ट्रेस, कहाँ पे मुझे स्ट्रेस देना चाहिए. स्ट्रेस मतलब कहाँ पे मुझे मीन्स जोर से बोलना है, कहाँ पे मुझे रुक जाना है, पॉज लेना है, और कहाँ पे मुझे मीन्स लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करना है और शॉर्ट साउंड प्रोड्यूस करना है. सो उसको सिलेबल कहा जाता है. तो पहला चीज तो आर्टिकुलेशन है, दूसरा प्रोनाउंसिएशन, तीसरा सिलेबल, सिलेबल वर्ड और सेंटेंस स्ट्रेस, एंड चौथा है इंटोनेशन. राइट. इंटोनेशन जो कि वर्ड, राइट, टोन के ऊपर डिपेंड करता है. राइट. इंटोनेशन, सो मीन्स whether it's a soft or called as a hoarse, right, आप पोलाइटली बोल रहे हो या तो मीन्स हार्शली बोल रहे हो, तो उसको आप इंटोनेशन कह सकते हो. सो सो इसको अगर देखा जाए, जिसके वजह से एक मीन्स स्टूडेंट मीन्स समझ पाएगा कि उसका मीन्स पोजीशन कहाँ पे है और वो उसका स्टैंडर्ड कहाँ पे है. राइट. तो उसके बेस पे वो अपना इम्प्रूवमेंट कर पाएगा. तो जिसको हम कहते हैं असेस अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिकेशन स्टाइल. सो अगर यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन
कि articulation, then articulation, pronunciation, syllable, word, sentence stress, and intonation are the examples of awareness of individual communication styles. So यही होना चाहिए. ठीक है. सो दूसरा चीज है कि आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो आप मीन्स किस हिसाब से अपना इम्प्रूवमेंट कर पाओगे ना, थ्रू द मेथड ऑफ ट्रेनिंग, राइट. सो कैसा ट्रेनिंग कि आप मीन्स किस हिसाब से साउंड को चेंज करते हो, इंटरचेंजिंग ऑफ साउंड्स. जैसे कि मीन्स मैं यहाँ पे सी कहूंगा, सी, एंड मैं शाह भी कहूंगा, राइट. स, श, स, श. सो दैट्स कॉल्ड एज अ चेंजिंग ऑफ साउंड्स, राइट. तो उसको इंटरचेंजिंग साउंड्स कहा जाता है. दूसरा क्या है, एमटीआई, मदर टंग इन्फ्लुएंस, राइट. जैसे कि आप दिस कह रहे हो या डिस कह रहे हो, DHIS this, DIS dis, right. So when the d sound is coming or the sound is coming, so that's also called as a mother tongue, right. मदर टंग इन्फ्लुएंस को किस हिसाब से आप अवॉइड कर रहे हो, राइट. सो वो भी एक रीजन है, राइट. उसको भी इम्प्रूव करना है. सो पहले तो इंटरचेंजिंग ऑफ साउंड्स, दूसरा है मदर टंग इन्फ्लुएंस, एंड तीसरा है इनकरेक्ट स्ट्रेस, राइट. सो अगर गलत जगह पे आप स्ट्रेस करोगे तो वो मेथड भी रॉन्ग ही हो जाएगा. जैसे कि प्रोनाउंसिंग द वर्ड कॉल्ड एज technology, right? And as technology, right? Technology, right? Stressing on the third syllable instead of the second, right? तो आप मीन्स थर्ड सिलेबल के ऊपर आप स्ट्रेस दे रहे हो, जबकि आपको स्ट्रेस देना था सेकंड पे, राइट. टेक्नोलॉजी, राइट, टेक्नोलॉजी. सो उस हिसाब से अगर देखा जाए, मीन्स आपने नो के बदले लो के ऊपर स्ट्रेस दिया. सो चौथा चीज है कि इनअप्रोप्रिएट इंटोनेशन, राइट. सो आप एक पर्टिकुलर पैराग्राफ को गाने की तरह मीन्स पढ़ रहे हो, या तो मीन्स फ्लैट इंटोनेशन स्टाइल, फ्लैट इंटोनेशन स्टाइल्स. जैसे कि अगर किसी बच्चे को कहा जा रहा है कि मीन्स कोई एक पैराग्राफ पढ़िए, वो इस हिसाब से पढ़ता है जैसे कि मीन्स उसका मन ही नहीं है, राइट. सो उसको कहा जाता है फ्लैट इंटोनेशन, मतलब साउंड में कोई चेंज नहीं है, राइट. सो ही गोज इट लाइक व्हाट, कंटिन्यूअसली. तो उस हिसाब से देखा जाए, अ, बहुत सारे रीजन है जिसके ऊपर एक बच्चे को इम्प्रूव करना चाहिए. दैट्स कॉल्ड एज इंटरचेंजिंग साउंड्स, एमटीआई प्रॉब्लम्स. देन थर्ड इज कॉल्ड एज इनकरेक्ट स्ट्रेस, एंड फोर्थ इज कॉल्ड एज इनअप्रोप्रिएट इंटोनेशन. सो इनअप्रोप्रिएट इंटोनेशन, सो ये चार चीज जिसके ऊपर इम्प्रूवमेंट हो सकता है. Then the third one is called as a means develop an understanding of the phonetic system. So phonetic system को means समझना है कि किस हिसाब से उसको डेवलप किया जा सकता है. So phonetic system मतलब sound system कि means जब एक स्टूडेंट अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझ जाता है, राइट. सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस किसके ऊपर ना, एक्सेंट ऑफ अ लैंग्वेज. सो यहाँ पे लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश, राइट. अगर एक स्टूडेंट समझ जाता है कि उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस मीन्स कहाँ पे है लैंग्वेज में, सो तभी जाके उसका फोनेटिक सिस्टम डेवलप हो सकता है, राइट. सो फोनेटिक सिस्टम एक्चुअली है क्या ना, मीन्स करेक्टली कोई एक वर्ड को मीन्स स्पेल करना या तो प्रोड्यूस करना, राइट. करेक्ट यूज ऑफ मीन्स और करेक्ट मैनर ऑफ एंड करेक्ट प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन. सो करेक्ट मैनर एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को कहा जाता है डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फोनेटिक सिस्टम, राइट. सो चौथा चीज जो है मीन्स अंडरस्टैंड द सिलेबिक स्ट्रेस एंड इंटोनेशन. जैसे मैंने कहा कि एक लड़के को और एक बंदे को, एक स्टूडेंट को, राइट, अपने कम्युनिकेशन स्किल प्रोसेस में मीन्स उसको समझना है कि मीन्स सिलेबिक पैटर्न्स है क्या, राइट. सिलेबिक पैटर्न्स क्या है, इंटोनेशन स्टाइल्स क्या है,
इंग्लिश में ये दोनों का इम्पोर्टेंस क्या है, राइट? सो जिसके वजह से उसका कंप्रहेंशन, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप होता है। सो किसकी वजह से? अंडरस्टैंड द सिलेबिक स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, राइट? सो जो फिफ्थ वन है उसको कहा जाता है करेक्ट, इम्प्रूव एंड प्रैक्टिस। तो ये सजेस्ट करता है कि जब आप एक लैंग्वेज के फोनेटिक सिस्टम को अच्छे से समझ जाते हो, सो आप एंड जो गलतियां होता है उसको अगर आप करेक्ट करते हो और उसको बार बार प्रैक्टिस करते हो, राइट, तो ये एक प्रोसेस के हिसाब से होता है और वहां से आपको पॉजिटिव चेंज और इम्प्रूवमेंट भी मिलता रहता है, राइट? ओके, नाउ चलिए we will go for the next one. The next one is called as a evaluate improvement. So सिर्फ आपको मीन्स क्या नहीं करना है, मतलब मीन्स आपको सिर्फ मीन्स अवेयरनेस नहीं रहना चाहिए, आइडेंटिफाई, और आपने जो आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम उसके ऊपर आपको सिर्फ काम करने से नहीं होगा। सो और फोनेटिक सिस्टम हो या स्ट्रेस एंड इंटोनेशन हो, जो भी आप चीजें फॉलो करते हो मीन्स आपके लैंग्वेज को डेवलप करने में, सो वहां पे आपका मीन्स इवैल्यूएशन होना चाहिए कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? सो you have to measure the level of the improvement and the weak areas of weak, sorry, in the areas of weakness, right? तो उसी के बेस पे आपको फोकस करना है, ठीक है? नाउ सो ये 6 चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए। सो व्हाट आर दे? इवैल्यूएट इम्प्रूवमेंट, देन आफ्टर correct improvement practice, understanding the syllabic stress and intonation, and developing an understanding of the phonetic system, then the identify areas of improvement and awareness of individual communication style। चलिए, तो अभी हम मूव करते हैं इंट्रोडक्शन टू फोनेटिक्स। सो फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है ना? दैट्स कॉल्ड एज अ साउंड। फोन, फोन मीन्स साउंड्स, राइट? सो phonetics is something which is indicating about means how you produce the sounds, right? And your sounds are making any kind of a differentiation or not in two different words। अगर देखा जाए यहाँ पे कुछ words present किए गए हैं, जैसे कि the word called as a sultry, right? Sal, it's called as a sultry and sugar, right? Sultry and sugar. Now, sultry is producing the sound that called as S, right? Whereas, you can say so, right? Whereas sugar is producing the sound that's called as a sh, right? So, agar aap dekhoge, there's something called as a, it produces the sound of S, whereas it produces the sound of SH, right? Sh and sh. Sure. तो उस हिसाब से C and idea, right? So what do you find out? SULTRY, SUGAR. Both are means having a same means what do you we say that same letter and same sound, but it produced the interchanging of the sound that called as one is a sir and the other one is a sh. So similar to that C and idea. So you will find out EA and EA. Both are called as a some kind of a means differentiation that you find out. This one is a C and this one is called as a EA. E and EA. So similar to that, heave and haven. Heave and heaven. So this one is E and this one is called as A. So frown and blown. So frown and blow. So frown, ow, OW sound, right? And blow. So that's called as O sound. So ow and O sound. EA, okay.
You can see that sultry, sugar. So then after C and Ia. Then after heaven, EA, heave, E sound, and heaven, A sound. Then after both have the same letter EA, but producing two different sounds. This one is called as a frown, ow, and this one is called as a blown. So O and ow, right? Next one is called as a tout, and another one is called as a vote, right? So next one is called as a cushion, right? Shun. Then after it is called as a million. So cushion, shun, right? This one is called as a eon, right? So and eon, right? This one is called as a chair and cow. So this one is a ch sound. This one is a ch sound. This one is called as a k sound. Chair and chaos, right? Similar to that, but when spelling is somehow called as a letters are CHA, right? But one is producing che and cha, and the other one is the second one is called as a k. Similar to that, polka and talk. O, right? Polka, right? And talk. So ka, a sound and a sound, talk, right? Similar to that, worm, and this one is called as a sturm, right? O, worm, O, and this one is a sound. Similar to that, people, right? People. So, and this one is called as a eopard, leopard. So eo, and this one is e. So laugh and ghost. So what do you find out? Means AUGH, right? So the production of the sound is called as AU, and this one is called as O. Laugh, right? Laugh. So we produce the sound of A, and this one is called as a ghost. Now see that. Each of the word pairs have a similar words. However, each of them is pronounced differently, and that is the reason यहाँ पे means इसको sound के हिसाब से consider किया जाता है phonetics. So let's see that यहाँ पे आपका कहा गया है कि sultry and sugar, right? तो अगर देखोगे sultry and sugar मतलब यहाँ पे two words have the letter of the alphabet s and sh, right? So agar sa hota hai, then it is producing sultry, and the other one is called as sugar, shu. So symbol को याद रखने की कोशिश कीजिएगा. That's called as sh, and this one is called as sa, right? So similar to that, ia and e, c and idea. The two words are the letters of the alphabet ia. However, the first word has a sound, right? Has a e c, I said, sound, and the second word has a sound, ia sound, e and ia sound. Similar to that. uh, hmm, now look into some more words are there. What you supposed to do? You supposed to remember them. So यहाँ पे भी देखिए heave and heaven, right? So यहाँ पे भी आपका दो words दिए गए हैं. The two letters are the letters of the alphabet. Heave, however, first word has that's called as a heave. E. So you here the sound you can find out means E I, then colon heave sound, and the second word has the have sound. So this one is a E, and this one is called as a. So it's not like hype. It's called as a E, and this one is means a sound.
Then similar to that taud and vowed, the two words have the letters of the alphabet out, right? However, the first word has the means you can say that taut, ow sound, and the second one has bo or void, void. उस हिसाब से pronounce होता है void. So oid and ow sound, and the second one has the means oid sound. So cushion and million, right? Cushion and million, cushion and million. The two words have the letters of the alphabet eon, right? Eon. So what do you find out? The first word has the on, right? On. Cushion, right? That's why it is called as a eon. And the second word has the that called as a million, right? So shun and million. So that is what the sound on sound, right? So that is what the difference here you find out. Similar to that, the sixth one that is called as a ch sound, and the second one is called as a k sound, because we produce the word called as a chair and chaos. Similar to that means if you talk about the first one, frown and blown, so it is called as a frown, right? Frown. So own, and the second word has the blown, blown. So yawn sound is coming. So one is called as a own, and the other sound is called as a yawn. Similar to that, अगर देखा जाए polka and talk. So one is called as the two words have the letters of the alphabet. Look, however, the first word has the means sound, and the second one has the uck, right? Tuck, uck sound is coming, right? So one is called as a uck, and another one is olk, polka, and tuck, uck sound. So similar to that, worm and stem, you would find out the first one is the two words have the letters of the alphabet ORM. However, the first word has the om, right? It is produced the sound called as a om, and the second one has the stem, om, the producing the sound that's called as the om sound, om, and the other one is called as a stem, right? Stem. So ra is missing here, but here you would find out om, right? Om and am. So similar to that, people and leopard, the two words have the letters of the alphabet that called as EOP. You can see EOP. So what do you find out? However, the first word has the means eep, peep, peep, people, right? And the second word has the means ape, leopard, ape sound, right? Eep sound and ape sound. Similar to that, laugh and ghost. The two words have the letters of the alphabet. That's called as a g. However, the first word has the f sound, and the second one has the g sound. So, because here you will find out g is um, why it is called as a f sound, because at the second it is present in the means second part, and it is present in the first part. So as it is present in the second part, you find out laugh. GH is producing the sound of laugh, first sound, and the second one, ghost, gh sound, isn't it? So that's what you find out in the production of means sounds. Okay. Now let's go for some basic idea. Basic idea is what कि phonetics है क्या, and means जैसे कि कहा जाए the IPA was published. So when did the IPA publish? The IPA was published in the year of 1888.
तो आईपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट्स कॉल्ड एज इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन. तो वन मोर क्वेश्चन may come. So if you see that the word pairs, so ये जो pair of words यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें स्पेलिंग आपका सिमिलर है लेकिन प्रोनाउंसिएशन आपका डिफरेंट है, राइट? सो अगर आप एक के बाद एक वर्ड को इस हिसाब से पढ़ते हो या तो लिखते हो तो आपका प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंशिएशन पता चलता है. सो जैसे भी उस हिसाब से अगर देखा जाए, हमारे पास दो टाइप के लैंग्वेज हैं. एक फोनेटिक लैंग्वेजेस, द वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड एग्जैक्टली द वे दे आर रिटन. सो मीन्स एक ऐसा साउंड सिस्टम है जहाँ पे हम वर्ड को उसी हिसाब से प्रोनाउंस करते हैं जिस हिसाब से वो लिखा गया होता है. एंड आर ऑल्सो रिटन एग्जैक्टली द वे यू हियर इट, और आप उसी हिसाब से भी लिखते हो जिस हिसाब से आप सुनते भी हो. मैं अगर कहूँगा सन, राइट, तो आप क्या SON लिखोगे या SUN लिखोगे? सो डिपेंड करता है कि आप जिस हिसाब से आप उसको सुनते हो उसी हिसाब से जो आपके दिमाग में है उसी हिसाब से आप लिखोगे. सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेलिंग एंड द प्रोनाउंसिएशन. सो डायरेक्ट रिलेशनशिप मीन्स क्या है ना, आपने जो सुना उसी हिसाब से आपने लिखा, राइट? सो अगर मैं कहता हूँ सन, राइट, so it produced the sound of SUN. If I say sun, so फिर भी आपको मीन्स देयर इज अ काइंड ऑफ अ ग्लिच यू मे फाइंड आउट. ठीक है, फाइन. दूसरा चीज है नॉन फोनेटिक लैंग्वेजेस. नॉन फोनेटिक लैंग्वेजेस में और फोनेटिक लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? फोनेटिक लैंग्वेज में आप जो सुनते हो उसी हिसाब से आप लिखते हो. नॉन फोनेटिक लैंग्वेज में वर्ड को उस हिसाब से ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया जाता है जिसके हिसाब से मीन्स आप लिखते हो. सो समटाइम क्या होता है कि स्टूडेंट्स राइट द वर्ड आफ्टर 2 or 3 times यू कॉल देम. जैसे कि मीन्स लिखो भाई फ्लेगमेटिक, सो फ्लेगमैटिक, फ्लेगमैटिक, राइट? सो उस हिसाब से वो कुछ बच्चे होते हैं मीन्स एफ से शुरू करते हैं और कुछ बच्चे होते हैं PH से शुरू करते हैं. ठीक है कि नहीं? तो उस हिसाब से अगर देखा जाए फोनेटिक लैंग्वेजेस आर हाईली नेसेसरी, क्योंकि मीन्स आपका आप जिस हिसाब से सुनते हो उसी हिसाब से आप उसको प्रेजेंट भी करते हो और लिखते भी हो. नॉन फोनेटिक स्टाइल में क्या होता है, कोई रिलेशन नहीं होता है कि आपको बुलाया कुछ जाता है और आप लिखते कुछ होते हो, राइट? जैसे कि फ्रेंच एंड इंग्लिश, राइट? सो अ सिस्टम दैट वुड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन बेटर इज द IPA, राइट? सो IPA क्या है? इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, राइट? तो और यू कैन से द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट. ठीक है, चलिए. उसके बाद हम कुछ इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के बारे में डिस्कस करेंगे. सो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है क्या ना? मीन्स इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट कंसिडर किया जाता है 44 साउंड्स को लेके, राइट? सो 44 साउंड्स मतलब यू कैन सी दैट यहाँ पे आपका डिवीजन हुआ है. सो पहले तो अगर देखा जाए हमारे पास कितने अल्फाबेट हैं, लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, हमारे पास 26 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट है, राइट? तो A to Z, जैसे कि और हमें पता भी है कि हमारे पास कितने कंसोनेंट हैं और कितने वावल्स होते हैं. तो अगर वावल्स कहा जाए तो बच्चे बोलेंगे AEIOU, राइट? सो 5 वावल्स. तो अगर 26 से 5 वावल्स को हटाया जाए तो कितने कंसोनेंट्स होते हैं? 21. A to Z से 21 कंसोनेंट्स एंड 5 वावल्स. तो लेकिन यहाँ पे मैंने कहा 44 साउंड्स. इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स है, अल्फाबेट्स में 22 साउंड्स हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर देखा जाए 26 आपका अल्फाबेटिकल लेटर एंड 21 कंसोनेंट, 5 वावल्स, and the next is called as a 24 consonant sounds, right? तो यहाँ पे याद रखिए लेटर्स 26 है, साउंड्स कितने हैं ना? 24 साउंड्स हैं एंड 20 वावल साउंड्स हैं. तो उस हिसाब से अगर देखा जाए 44 साउंड्स आर देयर, राइट? सो
और कैसे 44? Now 26 alphabetical letter, and means you can say that um, out of that 21 and 5 consonant and vowel, and 24, 20 is called as a number of consonant sounds and number of vowel sounds, right? So उसी हिसाब से हम कंसिडर करते हैं, ठीक है? So next